Welcome to Bioratna. My dear students, I am Chandana Sengupta. Today we are going to discuss the topic the diversity in the living world. The diversity in the living world, it's the same name that of the unit also. That is the diversity in the living world. बच्चों हम लोग ये वाला चैप्टर 4 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं. All 4 videos are available to you. The link is in the description box. Please go through each and every word carefully. Your preparation should be thorough from the first chapter to the last. You will get the link for the notes in the description box. चलिए शुरू करें. Now students, the diversity in the living world. Diversity, the variation. When you look around, अगर आप अपने आसपास देखते हो तो क्या देखोगे? आप दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को देखोगे. You will see your pets also. You will see the different insects around. Then you will see plants, etc., etc., etc. These are visible to you. Then there are many organisms which you cannot see. उसे देख भी नहीं सकते हो आप. So many organisms are there. Do you know what is species? जितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो, जितनों के आप नाम बोल सकते हो, everyone is a different species. आप कैट बोलते हो, दैट इज अ स्पेसीज. डॉग, दैट इज डिफरेंट स्पेसीज. हॉर्स, दैट इज डिफरेंट स्पेसीज. हाउ मेनी कैन यू नेम? आप अगर गिनो कि हाँ आपको कितने नाम आते हैं, एट द मोस्ट कितने बता पाओगे? 50, 60? डू यू नो द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ? It is 1.7 to 1.8 million. That too, that is not the complete number of species. This is only the known and described one. जितने आज तक हम खोज कर पाए हैं. ऐसे बहुत सारे स्पेसीज है, बहुत जंगलों में, घने जंगलों में, ऐसी जगह पे जहाँ हम अभी तक नहीं जा पाए हैं. There are different types of species which are yet to be discovered. तो जितने डिस्कवर किए गए हैं, that is 1.7 to 1.8 million. That large. So how do you define biodiversity? अब आपको पता चल गया कि इतनी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. So if you are asked to describe, to define, तो even we teachers what we say, biodiversity na? Bio means living and diversity. That means the variations, the different types of the organisms which are found on the earth is biodiversity. Check the definition given in your NCERT. It is the number and types of organisms which are found on the earth. Organisms मतलब different तरह के जो species है. Number and type, not just type. We are tempted to say only type. You are fortunate कि पहले ही चैप्टर में मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देने के लिए मिल गया है जहां मैं आपको ये बता सकूं कि शुरू से ही बच्चों you need to be careful about not just the science part of the sentence but also आपको ये यहाँ पे नंबर एंड टाइप लिखा हुआ है. इट इज नॉट नंबर ऑब्लिक टाइप. It is number and type. मतलब every year in NEET, in 12th board, in 11th class also, I mean the students, they are missing many points because they do not, they are not observant about. वो वहाँ पे from लिखा हुआ है, about लिखा हुआ है, inside लिखा हुआ है. Means just simply this changing it, the meaning of the whole question it becomes different. It becomes different.
तो इस चीज का भी ध्यान आपको देते चलना है अभी से. एंड whenever such sentences they come which become confusing, which can be changed, I will go on pointing. But here, whenever you are describing biodiversity, it is number and type of organisms present on earth, and it is 1.7 to 1.8 million. This also you have seen. Now, इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम भी देने हैं, हर किसी का नाम हो. एंड एवरी प्लेस, हर जगह के लोगों ने अपनी अपनी जगह पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लोकल नेम रखा हुआ है. सो कैन यू अंडरस्टैंड, मतलब द कंफ्यूजन इट क्रिएट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जिस नाम से, लोकल नाम से आप यहाँ बुलाते हो, वही चीज दूसरी जगह पे दूसरे नाम से जाना जाता है. सो दिस हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड ना, कि अलग अलग तरह का नाम आप नहीं रख सकते हो. दैट व्हेन यू टेक वन नेम, इन लोकल नेम्स आप दे सकते हो, फाइन, दैट्स नो प्रॉब्लम. बट एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम. उसी साइंटिफिक नेम से इट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. नाम देना, नामकरण, दैट इज नॉमेनक्लेचर. बट यू सिंपली कांट जंप टू नॉमेनक्लेचर. मतलब आप तुरंत पहले ही, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप that you find out one, discover one species and you give some name. तो वो गलत हो जाएगा. फर्स्ट यू हैव टू डू, फर्स्ट थोड़ा लाल कलर यूज कर लें तो आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा. सो फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन एंड देन इट इज आइडेंटिफिकेशन. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, then comes the third, that is nomenclature. इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको. लाइक सपोज एक बच्चा पैदा हुआ है एंड दैट गर्ल, शी इज वेरी फेयर, बट यू नेम हर एज काली. रॉन्ग. तो आपने अपने बच्चे का गलत नाम रख दिया. बट हियर व्हेन दिस इज साइंस, आप यहाँ पे अगर सही ढंग से उस डिस्कवर्ड स्पेसीज का कैरेक्टराइजेशन नहीं करोगे, पहले उसके सारे कैरेक्टर्स देखोगे, तब उसको आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ इसमें ये कैरेक्टर्स है, देन ओनली यू कैन गिव अ प्रॉपर नेम. एंड दिस process is called nomenclature. So what is nomenclature? Nomenclature is providing name to the organism. Now, the botanists जो प्लांट को लेके डील करते हैं, they follow all over the world. All over the world, they are following the principles, the rules which are by ICBN. ICBN. What is ICBN? International Code for Botanical Nomenclature. International Code किसके लिए? सारे प्लांट्स का नाम रखने के लिए. सो दिस इज फॉलोड बाय द बोटानिस्ट्स. सारे बोटानिस्ट इसे यूज करेंगे. व्हाट अबाउट द zoologists? दे फॉलो द nomenclature, द प्रिंसिपल्स which are laid by ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. जो लोग ये काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट. टैक्सोनॉमिस्ट्स, दे आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिस्ट्स. इन टैक्सोनॉमिस्ट का काम है बच्चों कि वो इंश्योर करें, दो चीजें इंश्योर करें. ये सिंपल सा चैप्टर है, आप में से बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा. क्या आप बता सकते हो कि कौन सी दो चीजें उन्हें इंश्योर करनी है? बता सकते हो? सोचो. जस्ट मैं लिखने जा रही हूँ, उससे पहले बताओ. सोच लिया? दे नीड टू इंश्योर दैट, पहला तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट
by the same name, दो scientific name नहीं हो सकते हैं. By the same name, that organism should be recognized all over the world. That means the same name all over the world, throughout the world. What is the next point? The next point is they have to ensure that that name was not given earlier, that it was not given earlier to any organism. पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया है. अगर दिया गया है तो वो उसका पेटेंट हो गया. एक नाम से एक ही स्पेसीज रहनी है. डन. चलिए देखते हैं अब व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर तो क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों. नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, नाम देना. It follows two other processes, two other steps, that is identification, characterization and identification. Then it is nomenclature. Binomial, bi मतलब दो. Binomial nomenclature means the name of every species, it has two parts. जैसे आपका नेम, suppose you are अजय राठौर. If you are Ajay Rathore, your name is also having two parts. But here the first part, ये आप खुद हो, इंडिविजुअल हो, और ये तो आपका फैमिली का नाम है. उसमें तो आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सारे आते हैं. Here it is different. Here the major group, बड़ा वाला ग्रुप, वो पहले आता है, उसे कहते हैं जीनस. और जो इंडिविजुअल स्पेसीज है वो आता है बाद में. दो नाम नहीं. That goes totally wrong. That mistake also is often done ना. That binomial अच्छा हुआ ये मेरे मुंह से निकला, because this is the most common mistake जो बच्चे ऐसे समझ जाएंगे. लिखते समय लिखेंगे binomial nomenclature is that type of nomenclature where two names are given to a species. No. This is not two names. This is not two names. The name has two parts. It is a single name, but it is having two parts. Binomial nomenclature, it is followed universally by all the taxonomists. सारे taxonomists इसे follow करते हैं, and it was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. He gave this binomial nomenclature, which is very convenient. What are the different principles which are followed in binomial nomenclature? Let us take the example of mango and let us see then it becomes very easy to understand now. One example, that is Mangifera indica. Mangifera indica. So the first point is that the name has two parts. The name has two parts. The first part, this is the major group ना, बड़ा ग्रुप जिसमें वो बिलोंग करता है. मतलब काफ़ी सारे स्पेसीज जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, उनका एक ग्रुप बना के उनका एक नाम रखा जाता है. So that is this group, and this is the species. So it has two parts. The first is genus and the second is species or specific epithet, it is called. Second point. The genus name, first letter of genus name now. The first letter of genus name, it is always written capital. It is always written capital. See, everything is small letter में लिखा हुआ है ना. Only this first letter, that of genus, it is capital. यहाँ पे ये capital है. Whereas
the species name, it is always first letter. No, all letters they are small letters. Fine. तो बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन ऑफन पूछे जाते हैं. जैसे ये क्या गलती है बताइए. यहाँ मैंगीफेरा किया, यहाँ पे आई कैपिटल कर दिया, दिस इज रॉन्ग. या आप यहाँ पर भी स्मॉल लिख देते हो, यहाँ पर भी स्मॉल लिख देते हो, that is also wrong. You need to take proper care of this. So the correct one, ये गलत तो लिख कर भी मत छोड़िए. The correct one is, this is the smaller one and this one is the bigger one. Fine. Now the names, whoever gives the name all over the world, the names, they are in Latin. They are in Latin and they are written in italics. They are written in italics to show their relation to Latin. Then when these two words they are handwritten. अगर आप इसे हाथ से लिखते हो तो क्या किया जाता है बच्चों. देखिए तो मैंने क्या किया है वहां पे. Then they are underlined. और अगर प्रिंट करें तो, and if printed, अगर इसे प्रिंट करेंगे then it is in italics. ठीक है. और एक चीज है, देखिए, दिस नेम मैंगीफेरा इंडिका लिख दिया, उसके बाद जिसने वो नाम दिया हो, जिस बायोलॉजिस्ट ने वो नाम दिया हो, उसका नाम लास्ट में इंक्लूड किया जाता है. लिन, LINN, मैंगीफेरा इंडिका. लिन मीन्स लिनियस. दैट मीन्स दिस नेम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. फाइन. So you understood up to binomial nomenclature. ऑर्गेनिज्म को आपने डिस्कवर किया. डिस्कवर करने के बाद आपने उसका कैरेक्टराइजेशन किया. Then you did its proper identification. Accordingly you did the nomenclature. अब उसका आपने सही नाम रख दिया. Now all these different organisms, they need to be classified. Classify करना होगा बच्चों. What is classification? Classification is anything, means we are not just talking about living organisms. किसी भी चीज को उसके किसी कैरेक्टर पे बेस करते हुए अलग अलग ग्रुप में बांटना, that is classification. That means to group anything into different categories. अलग अलग कैटेगरीज में आपने इसको बांट दिया. कैसे भी तो नहीं कर सकते हो ना. That should be based on some characters. So that is the classification. क्यों करते हैं हम classification? We have just studied that the discovered and named species, their number is 1.7 to 1.8 million. So vast. So if if anyone wants to study, we want to study the character of all these organisms, is it possible? Possible नहीं है. It is not possible, but if we group them into categories, तो काफी कम कैटेगरीज में इन सारे स्पेसीज को हम एकोमोडेट कर सकते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये अगर इस ग्रुप में है, इसका मतलब उसमें ये कैरेक्टर्स होने ही चाहिए. जैसे टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. रसोई में आपकी मदर जब आपका राशन आता है तो सारे मसालों को, दैट हल्दी एंड मिर्च एंड द धनिया, एवरीथिंग शी कीप्स सेपरेटली. ऑल द पल्सेस शी कीप्स सेपरेटली.
देन हर वर्क बिकम्स वेरी इजी कि दाल लेना है कहाँ से लेना है, मसाला लेना है कहाँ से लेना है. सो हर वर्क बिकम्स इजी. हियर आवर स्टडी बिकम्स इजी. We come to know, we immediately understand कि if it belongs to this group, तो इतने कैरेक्टर्स तो उसमें होने ही चाहिए. अलग अलग कैटेगरी, जैसे कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है. एक कैटेगरी आप ले लीजिए एनिमल. अच्छा, तो एनिमल है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आता है अच्छा ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल ग्रुप को बिलोंग करता है. इट इज़ नॉट प्लांट. प्लांट इज अनदर कैटेगरी. Then you are said that it is a mammal. अच्छा, मैमल भी एनिमल ही है ना, एनिमल का ही एक ग्रुप है. सो इट इज मैमल. सो इमीडिएटली यू नो कि अच्छा मैमल है. इवन इफ यू हैवंट हर्ड ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, यू नाउ नो कि इट हैज मैमरी ग्लैंड्स, इट हैज एक्सटर्नल ईयर. कान और किसी के नहीं होते बच्चों, जानते हो. इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये जो बाहर से दिखाई देने वाले कान है, और ये जो बॉडी हेयर है, बॉडी हेयर भी और किसी में नहीं होता. मतलब अगर उसमें हेयर है, इफ यू सी एन ऑर्गेनिज्म हैविंग हेयर एंड इट इज हैविंग एक्सटर्नल ईयर, दैट इज द पिन्ना, एंड मैमरी ग्लैंड्स, these two characters also if you observe, then that organism it is a mammal only. Then you are said okay it is a dog. Dog है, इसका मतलब तुरंत आप समझ गए it is having a tail and all the characters of a dog. Then you are told that it is Alsatian. Alsatian is a breed of dog. So all these all are different categories. ये सारे के सारे कैटेगरीज ही है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, बट दे आर different categories at different level. कितना अच्छा वर्ड है, at different level आपने लिख दिया तो आपको समझ में आ गया कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन दे ऑल आर कैटेगरीज एंड द कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सा. टैक्सा क्या है? द डिफरेंट कैटेगरीज इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड. टैक्सा का क्या लिखोगे? टैक्सा का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? द डिफरेंट कैटेगरीज, ये वही कैटेगरीज है into which organisms are classified. Organisms are classified. और ये काम जो लोग करते हैं, ये काम जो लोग कर रहे हैं अलग अलग टैक्सा में ऑर्गेनिजम्स को बांटने वाला, ये काम करने वालों को कहते हैं टैक्सोनोमिस्ट. दिस वर्ड यू जस्ट केम अक्रॉस. जब ICBN ICZN पढ़ रहे थे तब वर्ड पढ़ा टैक्सोनोमिस्ट. These are those scientists who are working towards this, means classifying the organisms and making the different groups. So they are taxonomists. Now let us see, यही taxonomy से continue करते हुए हम देखते हैं what is taxonomy. Taxonomy very simple. Taxonomy अब अपने आप बता सकते हो. सोचो पहले, taxa means what? The different groups at different levels which are formed by the process of classification. So what is taxonomy? Taxonomy is the process of the formation of the taxa during classification. Classification के समय जो different group में आप divide करते जाते हो, उस process को कहते हैं taxonomy. तो टैक्सोनॉमी करने के भी तो कुछ रूल्स होने ही चाहिए ना बच्चे. टैक्सोनॉमी करते समय भी तो कुछ रूल्स फॉलो करना है. क्या देखते हैं ये टैक्सोनॉमिस्ट जब वो क्लासिफिकेशन का काम करते हैं? लेट अस सी. सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ organisms into different taxa which we also call as categories.
यहाँ तक आसान है ना बच्चा? टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टैक्सा और कैटेगरी. इट इज बेस्ड ऑन, इसको जैसे तैसे कैसे भी रैंडम आप तो कर नहीं सकते हो, कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. किसके ऊपर बेस करके ये टैक्सोनॉमी की जाती है? इट इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कि ये बाहर से कैसा दिखता है. देन द एनाटॉमी, अंदर के बॉडी पार्ट्स कैसे हैं. देन द हिस्टोलॉजी, कि हाँ सेक्शन अगर लेके माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसे दिखता है. देन द साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स सेल का स्ट्रक्चर क्या है. देन द बायोमोलिक्यूल्स, इसके बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स कैसे हैं. लाइक means all such characters, all different types of characters found in the organisms. ये सारे consider में लाते हैं. There is one more is given in the NCERT ना. It is ecological information. यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं. It is ecological information. What is ecological information? मतलब वो बंदा कहाँ रहता है, कैसे उसकी इकोलॉजी कहाँ रहता है, कैसे रहता है, हैबिटेट क्या है, और क्या रोल है उसका पूरे सिस्टम में. लाइक दैट, दिस इज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए टैक्सोनॉमी की जाती है. दैट मीन्स टैक्सोनॉमी में हम लोग कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं, देन क्या था नेक्स्ट वाला, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं. और क्लासिफिकेशन करते समय हम लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. क्लासिफिकेशन करते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. सो द 4 थिंग्स फंडामेंटल टू टैक्सोनॉमी. और एक एमसीक्यू निकल आया ना बच्चा, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं. इसमें से एमसीक्यू में ये करेक्ट ऑप्शन रहा, बाकी 3 जो भी बदल दे जैसा करे, ये 4 आपके तुरंत पकड़ में आ जाने चाहिए. कंटिन्यूसली हम इसे पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे भी ये याद हो ही गया होगा. सॉरी, एक्सक्यूज मी. सो दिस वॉज टैक्सोनॉमी. अब ये टैक्सोनॉमी बड़ा भयंकर सा नाम अभी हमने दे दिया है टैक्सोनॉमी. तो क्या अर्लियर हमारे पहले पूर्वज वे क्लासिफिकेशन नहीं करते थे, टैक्सोनॉमी नहीं करते थे? ऑफ कोर्स दे डिड. लेकिन पुराने नहीं, हमारे पूर्वज जो थे उनकी नीड इट वाज, वो सीमित थी द फूड, द क्लोथिंग एंड शेल्टर पे, रोटी, कपड़ा और मकान. सो द क्लासिफिकेशन दे डिड वाज ऑन द बेसिस ऑफ द यूज, कि हर ऑर्गेनिज्म को हम किस काम के लिए ला सकते हैं. क्या ये मेरा फूड है, क्या ये मेरा, इससे हम अपना कपड़ा बना सकते हैं, क्या ये मुझे शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है. दिस इज व्हाट दे वेर इंटरेस्टेड इन पहले. अभी तो पहले हम लोग ने टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट लिया, बहुत अच्छा लंबा खासा प्रोसेस पूरा एकदम मास्टर कर लिया. देन वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट. हम चाह रहे थे अब हम एक फर्दर स्टेप. दैट स्टेप इज, फिर ये है सिस्टेमैटिक्स. व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सिस्टमैटिक्स इज नॉट जस्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इन द बिगिनिंग जब शुरू किया गया तो हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि हम किससे ब्रांच आउट हुए हैं, कौन हमारा एंसेस्टर है. ऐसे तो हम सारे के सारे एक ही एंसेस्टर से निकले हुए अलग अलग ब्रांचेस है. कौन हमसे पहले था, उससे पहले कौन था, कौन किससे ब्रांच आउट किया. ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स दैट the branch of science which studies this relationship, ancestral relationship, the evolutionary relationship, which studies the evolutionary relationship between different groups. It is called
इट वॉज कॉल्ड फर्स्ट, दैट मच वॉज सिस्टमैटिक्स। अभी इसमें टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड किया गया है। सिस्टमैटिक्स का फ़ायदा क्या? सिस्टमैटिक्स का फ़ायदा जैसे आप लिखते हो, आपने लिखा पाइसेस द फिश को लिखा, फिर आपने एम्फीबिया लिखा, फिर देन यू राइट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स। When you are writing in this sequence, you have to write compulsorily in this sequence also because this is systematically arranged. और ये आपकी पढ़ाई आपके नेक्स्ट चैप्टर में कितनी आसान कर देने वाली है, ये उस चैप्टर को पढ़ते समय ही आप समझ पाओगे। जैसे अगर कोई कैरेक्टर आप ले लेते हो, जैसे द चेम्बर्स ऑफ हार्ट, तो सबसे कम चेम्बर्स 2 चेम्बर रहेंगे फिश में, 3 है एम्फीबिया में। Most of the reptiles, they also have 3-chambered heart, but some reptiles, they are struggling to have 4 chambers. And crocodile, it has developed 4-chambered heart. और ये birds और mammals में 4 chamber है। मतलब कोई भी कैरेक्टर लेके आप जानते हो, जब नाम आप सिस्टमैटिकली लिख लेते हो कि कौन सा कैरेक्टर पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। सो सिस्टमैटिक्स में बाद में एडिशन हुआ टैक्सोनॉमी का भी, दैट इज ऑल दिस आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एक्सेट्रा। सो नाउ हाउ यू कैन डिफाइन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला थे बच्चों, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। नाउ सिस्टमैटिक्स इज, टैक्सोनॉमी पढ़ा था आपने, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बस हो गया। टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दोनों को कंसिडर करते हैं, देन इट इज सिस्टमैटिक्स। डन, समझ गए? आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी लेके आपका असली काम शुरू होता है बच्चा, समझाया हमने। अब आप बैठोगे, इसको कैसे अंडरलाइन करना है, कैसे आई एम ऑलवेज पुटिंग स्ट्रेस ऑन प्रिपेयरिंग दोज स्टिकी नोट्स एंड द फ्लैश कार्ड्स, दैट विल मेक द होल, दैट इज गोइंग टू चेंज द होल सिनेरियो। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा रहेगा। क्लियरिंग कंसेप्ट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इतना सारा महाभारत जो पढ़ने वाले हो, उसको कैसे याद रखना है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत मदद करेगी। सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक्स दिए हुए हैं कैसे क्या पढ़ना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, देन डू सब्सक्राइब, like and share. Thank you for watching the video.